We will wait for 1 or 2 minutes for others to join. In offline class, few students are pending. Then I will start. So till now, first of all, good morning, everyone, to the online people also. So till now, we have completed this section and we have already completed till here. Okay. So I was looking at syllabus yesterday and this was something written linear classification. And personally, I know that there is nothing as such in linear classification except logistic regression, right? तो अगर हमें जैसे कोई लीनियर कर्व फिट करना है तो हम पहले उसको लीनियर कर्व अगर लगा भी दोगे देन यू हैव टू इन द क्लासिफिकेशन के लिए डू सम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ओनली. तो लीनियर क्लासिफिकेशन में वी विल बी स्टडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द classification metrics along with this slide only. We will cover these three things and other classification metrics also, ROC, AUC, confidence metrics, and also we will visualize them in the lab. But right now, I will start logistic regression to cover the linear classification part. So starting with that, I will go to full screen. So in logistic regression, क्या कुछ पता है हमें बताओ? All the online people as well as offline. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है पढ़ा हुआ है पहले? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है बताओ, जो पता है बताओ. Why do we call it regression? This is the first question from my end. Why do we call logistic regression as a regression जबकि काम उसका क्लासिफिकेशन का है? हाँ जी, एनीवन एल्स? उसका काफी हद तक ठीक है. डू यू वांट टू इम्प्रूव इट? पढ़ा हुआ है, 2-3 बार पढ़ा हुआ है, एमएल में पढ़ा हुआ है, डाटा एनालिटिक्स में पढ़ा होगा, राइट? हाँ जी, हर्षिता. Yes, sir. हाँ जी, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड? व्हाट डू यू नो अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन? सर मैं ऑफलाइन का तो सुन नहीं पाई, बट हम्म. आई ओनली नो द वेरी बेसिक्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बताओ क्या क्या होता है. Okay, so used for categorical variables to predict, let's say, spam ham, or whether a tumor is cancerous or not. what And what about what about the multi-class classification? Can it do that? Can this logistic regression help us in multi-class classification? yes, it can, by calculating probabilities of the target variables. Using which method? Not sure, sir. Okay, so I will start with the topic and let's see that how this logistic regression works and why do we call it regression instead of classification. सर हाँ जी बताओ. सर फॉर मल्टी क्लास वो वन वर्सेस ऑल वाली टेक्निक्स जो थी वो वाला होता है. हाँ वही होता है, मैं आज उसको कवर करूंगा. हाँ. So one versus rest, one versus all is the technique to implement multi-class classification using this particular method, which is by default doing binary classification. ठीक है, तो देखते हैं how the things work. So we all know that we have some independent variables and few are the dependent variables. Dependent variable हमारा y column होता है and in that you have to, let's say, classify 2 categories or maybe more. ठीक है, so classification is a supervised learning technique, and by supervised learning technique it means that we have the target variables with us. अगर y वाला column is missing, it is not supervised. If you skip that, it will become unsupervised because then the only option is clustering.
आप फिर सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। बट सुपरवाइज में दिस इज ए कंपल्शन दैट योर वाई इज ऑलरेडी गिवन and this y has to be discrete value which was a continuous value in our regression. हमने हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन करा है, आपको असाइनमेंट में भी वो एडवांस रिग्रेशन टेक्निक वाला जो असाइनमेंट दिया उसमें भी, प्लस अगर आपने अपना बॉस्टन डेटा सेट पे हमने काम किया उसमें भी वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं। किसी भी घर का प्राइस है वो 55 लाख हो सकता है, 55.5 हो सकता है, 1 CR हो सकता है, 1 CR एंड 1 लाख हो सकता है, तो 1.01 हो जाएगा। तो हमारे पास किसी भी टाइप का नंबर आ सकता है, ठीक है। और आजकल तो इतने सारे जीएसटीज हैं, तो कुछ भी हाउसिंग प्राइस अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो राउंड ऑफ करके नहीं मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई घर खरीदा 3 BHK तो उसका प्राइस कुछ ऐसे होगा, लेट्स से 90 लाख 55,000 समथिंग एंड समथिंग। तो मतलब कुछ भी, इसको हम क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तो फिर हमारी नंबर ऑफ क्लासेस 1 लाख हो जाएंगी, 1 करोड़ हो जाएंगी, तो उसको हम रिग्रेशन बोलेंगे। इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसमें क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब है कि लिमिटेड नंबर होगा, इट मे बी 1, इट मे बी 1 बिलियन। जैसे अब आधार नंबर है, ठीक है, आधार कार्ड अपना, देर आर 139 करोड़ पीपल इन इंडिया, हर किसी का यूनिक नंबर है, एटलीस्ट इट इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे पॉइंट वाला तो कोई नहीं ना आधार नंबर, एक राउंड नंबर है। तो इसमें पहली बात तो कोई भी पॉइंटों में नहीं नंबर होगा डिस्क्रीट वैल्यूज में। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्लासिफाई कर पाए, अब ये जो मैंने 139 बिलियन का ऑप्शन, 139 बिलियन का ऑप्शन दिया, 139 करोड़, ये इसलिए दिया है बिकॉज दिस इज इन ए वे फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम विच यू माइट बी डूइंग आफ्टर 3 or 4 years। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग विद गवर्नमेंट, तो वहां पे आपके पास वो डेटा सेट का एक्सेस होगा और आप उस लेवल पे मे बी वीडियो रिकॉग्निशन कर रहे हो सबका ऑल इंडिया, जस्ट टू मे बी क्लासीफाई कि ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं है। करना बाइनरी क्लासिफिकेशन है, बट वो इतना सारा बड़ा डेटा सेट है। या फिर आपने ये भी देखना है कि वो बंदा है कौन, ठीक है। तो वो 100-200 क्लासेस वाली गेम नहीं रह जाती, वो करोड़ों की गेम हो जाती है। एंड फॉर दैट वी हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज, वो बाद में देखेंगे, वो स्केलिंग प्रॉब्लम है। बट फॉर नाउ द समरी इज दैट वी हैव डिस्क्रीट वैल्यूज इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एंड मल्टी लेबल, देयर इज वन मोर, मल्टी लेबल, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में? बाइनरी, मल्टी क्लास एंड मल्टी लेबल। एग्जांपल दो मेरे को। हाँ जी, एनीवन ऑनलाइन? मल्टी क्लास और मल्टी लेबल में मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बाइनरी तो सबको पता है 0 1, ठीक है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एंड मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, इसमें डिफरेंस बताओ मेरे को थोड़ा जल्दी, वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ जी, ऑनलाइन। सो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपके पास दो से ज्यादा क्लासेस हैं, बहुत सिंपल है। मल्टी लेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम क्लिकिंग दिस फोटोग्राफ आपकी सबकी, तो उसमें मुझे एक मल्टी लेबल का मतलब है कि मुझे प्रोजेक्टर भी हाईलाइट करना है, मुझे बेंचेस भी हाईलाइट करने हैं, चेयर भी करने हैं, ह्यूमन बींग्स भी करने हैं। तो एक ही फोटो में अगर आप मल्टी लेवल निकाल सकते हो, एक तो आ जाएगा फुल क्लासरूम, एक आ जाएगा प्रोजेक्टर, हैशटैग स्टूडेंट्स, हैशटैग बेंच, ऐसे करके मल्टीपल हैशेस निकल आएंगे अगर हम इंस्टाग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। तो अगर हमने मल्टीपल हैश निकालने हैं, मल्टीपल यूनिक वर्ड्स निकालने हैं कि इस फोटोग्राफ में क्या कुछ है, तो वो मल्टी लेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दैट इफ कोहली जॉइंस पॉलिटिक्स, तो उसके साथ एक स्पोर्ट्समैन का तो टैग था ही, एक पॉलिटिशियन का भी लग जाएगा, एक ही बंदे के ऊपर दो लेबल लग गए, ठीक है। वो होता है मल्टी लेबल। एंड वाई रिग्रेशन मॉडल्स आर नॉट यूज फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब वही है कि आपके पास रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस वैल्यूज थी अपने पास, अब हमें डिस्क्रीट चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये, अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। आई विल गिव यू वन थिंग दैट हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन का अगर ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन देखेंगे ना, अब आगे जाके ग्रेडियंट डिसेंट का ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन एग्जैक्टली सेम है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिग्मोइड वैल्यू जो उसके साथ लगी हुई है, जो एक्टिवेशन फंक्शन हम साथ में लगाएंगे, जो हमें हेल्प करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी को क्लासीफाई करने में कि वो 0 की तरफ आ रहा है या 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है।
तो अभी देखते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे अगर हम रिग्रेशन लगा देंगे तो स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश करेंगे, दिस इज नॉट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है। अगर आप कर्व फिट कर भी दोगे तो हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस वन, अब रेड लाइन है, रेड लाइन के बेसिस पे जबकि वो दोनों हमारे जो वन के पास वैल्यूज हैं, जैसे ये वाला वन के पास है, ठीक है, और ये वाला 70 के पास है, 60-70 की रेंज में है, तो ये दोनों एक साइड पे हो गए। पर इस वाले में तो ऊपर नीचे था, साफ पता चल रहा है कि 0-1 की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए हमें कुछ एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए जो ऐसे वाली नॉन लिनियरिटी को हैंडल कर पाए। So logistic regression is one of the most popular ML algorithm which comes under supervised. और इसमें logistic regression is much similar to linear except how they are used. Linear is for regression problem and logistic is for classification. So let's look at this function. So now we are talking about the sigmoid function. Sigmoid को हम logistic function भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक फंक्शन हमने लीनियर रिग्रेशन को अपडेट करके, लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या होता था, यही होता था y हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2, जो हमारे पास वहां पे दिख रहा है e की पावर में हमें, ठीक है। तो हमने उस z को, सपोज दैट वैल्यू वाज z, हमने उस वैल्यू को उठा के e रेज पर माइनस z कर दिया और उसको डिनोमिनेटर में 1 प्लस करके लिख दिया। सो दैट्स माय लॉजिस्टिक फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन। दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन जिसका फॉर्मूला ऐसा है 1 प्लस 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z वेयर z इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो z इक्वल टू आ रहा है हमारा, दिस वन इज एक्चुअली माय लीनियर रिग्रेशन वाला इक्वेशन, ठीक है। तो हमें मैथमेटिकली डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या चेंज हुआ है, बस हमने साथ में वो लगा दी है एक्टिवेशन फंक्शन। एंड नाउ इफ यू प्लॉट दैट, if you put the values of different values of z into that equation, अगर z equal to 0 डालोगे तो obviously mathematically सामने solved है, तो e raised पर minus 0 will be 1, तो 0.5 आ जाएगा। infinite होगा z, then it will be total 1 y hat will be 0 if my z equal to minus infinity, you can do the maths, ठीक है। and this curve will look like a s function, ठीक है। और इसमें एक और चीज कवर हो जाएगी, अगर सपोज थोड़ा स्क्यूनेस है डेटा में, तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम पॉइंट्स हियर, ठीक है, और यहाँ पे भी अपने पास पॉइंट्स हैं, पर अगर कुछ डाटा यहाँ पे भी है, सपोज इस स्केल पे यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली हमारा वन क्लास में क्लासिफाई हो जाएगा, वही वाला एस वाला कर्व, क्योंकि एक बार वो फ्लैटन आउट हो चुका है, एक बार वो कन्वर्ज हो चुका है, दैट विल कीप ऑन गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन और वो वाली चीज कवर हो जाएगी। सो द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 0.5। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन टिल नाउ, आपको क्या लगता है जो हम ये z इक्वल टू 0.5 कर रहे हैं, हमने z इक्वल टू, यहाँ पे हमने जैसे ये z इक्वल टू 0 पे y हैट 0.5 निकाला है, तो हमारा ये वाला थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.5 वाला बीच में, ठीक है। तो क्या मैं इस 0.5 को कम ज्यादा कर सकता हूँ कि ये हमेशा 0.5 ही रहेगा फॉर माई लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम? बताओ, कैन दिस 0.5 वैल्यू बी चेंज्ड टू कैलकुलेट द लेबल? इफ yes, why? if no, why? with reason, with example, बताओ। मैं लेबल का जो डिसीजन करना है मैंने कि वो 0.5 से ज्यादा है, उसको मैं 0.5 को 0.8 कर सकता हूँ, या 0.2 कर सकता हूँ, 0.3 कर सकता हूँ? अगर हाँ, आंसर तो यस है, कर सकते हैं। मैं रीजन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। प्रैक्टिकल एग्जांपल दो भाई। दिस इज मैथमेटिकली आप बोल रहे हो कि आप इसको कर दो, वो कर दो, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, वो नहीं। एग्जांपल दो, इन व्हाट काइंड ऑफ ए सिनेरियो हम, सपोज यू आर ए डाटा एनालिस्ट इन सम XYZ कंपनी, तो आपको वहां पे ये डिसीजन लेना अपने एंड पे कि यार मेरे को ये करना है, लॉजिस्टिक लगाना है, बट इट विल बी बेटर अगर मैं 0.5 ना रखूं, 0.8 कर लूं। तो ऐसा क्या सिनेरियो होगा कि मैं 0.8 कर दूंगा इस नंबर को, कि 0.8 से बड़ा होगा तो 1, उससे नीचे है तो 0? कोई भी एक एग्जांपल दो, जल्दी बताओ, वी डोंट हैव मच टाइम।
हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा कि आप लॉजिस्टिक का फंडामेंटली बदल दोगे। ग्रेडिंग कह रहे हो आप? ओके, और मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। आई हैव सॉल्व्ड वन प्रॉब्लम ऑन कैगल रिलेटेड टू दिस, इसलिए बोल रहा हूँ। देयर इज वन प्रॉब्लम कॉल्ड टेलीफोन चर्न प्रिडिक्शन, ऐसे कुछ है प्रॉब्लम का नाम। चर्न होता है कि कितने जने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा लेंगे मेरी कंपनी को छोड़ के। चर्निंग इसको कहते हैं कि कौन मेरी कंपनी को छोड़ देगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने सपोज आप वोडाफोन में लग गए हो या किसी और कंपनी में लग गए हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है अपने एंड पे कि यार इस बंदे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑफर दे दो, ये बंदा छोड़ने के कगार पे है, वरना ये छोड़ जाएगा, हमारी कंपनी शिफ्ट हो जाएगा कहीं और। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको चर्न प्रिडिक्शन करना है कि ये बंदा छोड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे आप ऐसा देखोगे कि इसकी जो टोटल रेटिंग है आफ्टर ऑल द फीचर्स, आप उसका कुछ नंबर निकालोगे। अगर ये 0.8 से ज्यादा है तो सेफ है, अगर 0.8 से कम नंबर आ रहा है इसका मतलब ये छोड़ेगा। इट मे बी 0.2 ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन आप किस एंगल से सोच रहे हो। ठीक है, अगर सपोज 0.2 0.3 से ऊपर है तो सेफ है। अगर बंदा इस बिलो 30% एवरेज वाले में कैटेगरी में आ गया, ये पक्का छोड़ के जाएगा, बिकॉज माई डेटा सेज। ऑब्वियसली अनसेटिस्फाइड कस्टमर ही छोड़ेगा ना। तो उस केस में आपने करनी बाइनरी प्रेडिक्शन ही है कि बंदा छोड़ेगा कि नहीं, लेकिन आप डिसीजन 0.5 पे नहीं कर रहे, आप 0.2 पे कर रहे हो या 0.3 पे कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आपका डाटा क्या कह रहा है। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता आप कर सकते हो सॉल्व। आई विल इनकरेज यू टू इनफैक्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन द लैब, मैं वही दूंगा करने के लिए। लॉजिस्टिक लगाना 10 मिनट का काम है, वी विल इम्प्लीमेंट दैट, मैं आपको वो पूरा कोड दे दूंगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट ऑन ए कैगल प्रॉब्लम, दैट विल बी समथिंग रिलेटेड टू चर्न प्रिडिक्शन। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस केस में हम 0.5 लेके चलेंगे, दिस इज द आइडियल नंबर। 0.5 से ऊपर है तो लेबल 1 होगा। मैथमेटिकली अगर आप इस इक्वेशन में डाल दोगे वैल्यू, तो आपका दिख जाएगा आपको सॉल्व वगैरह करके। z इफ z इज लेस देन 0, तो वो नेगेटिव क्लास होगा, लेबल 0 होगा। अगर आपका z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, z इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ग्रेटर देन 0.5 होगा। इफ इट इज less than 0, it will be class will be 0 and y hat will be less than 0.5. ठीक है, and इस केस में क्या हो रहा है that this example in this figure we are showing the dependence of age and length of hair to classify if the person is male or female. ठीक है, मतलब obviously अगर बाल लंबे हैं, एज ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फीमेल होगी। ठीक है, और इस केस में हमने ऐसे करके कुछ लीनियर फिट करने की कोशिश करी है। इन दैट केस आप लीनियर अगर डिसीजन बाउंड्री बनाओगे भी, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे दैट इट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो आप लीनियरली क्लासीफाई नहीं कर पाओगे, तो इस प्रॉब्लम को आपको किसी और डायमेंशन में शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स नॉन लीनियर डायमेंशन में लेके जाना पड़ेगा, दैट विल बी टेकन थ्रू द सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई बाय दैट सिग्मॉइड फंक्शन कर दोगे, देन इट विल बिकम इजी टू क्लासीफाई। ठीक है, तो इसको आप करके देखना। In fact, I will encourage you to visualize the predictions after the predictions है, मतलब जब ये हो जाएगा, ये बैकएंड पे जैसे ये फंक्शन लगेगा, तो आप बीच में उसको विजुलाइज करके देखना दैट ओरिजिनल एक्स मेरा क्या था और ट्रांसफॉर्म्ड एक्स क्या है। इन दोनों को आप विजुलाइज करना अपने एंड पे लैब में। So decision boundary may be of any shape, linear or non-linear, depending on the z function we choose. Decision boundary is insensitive to balanced or imbalanced data and is the characteristic of hypothesis function. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने अपना जो डिसीजन बाउंड्री करना है वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। डाटा में आउटलायर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने हाइपोथेसिस फंक्शन के साथ डिसीजन बाउंड्री को मैच करना है। ठीक है, नॉट ऑन डाटा। तो बस इतना बताया गया है। एंड दिस इज द थिंग, इम्बैलेंस डाटा वाली प्रॉब्लम जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर कोई आउटलायर आ जाता है तो उसको भी ये हैंडल कर लेगा मेरा लॉजिस्टिक वाला। नॉर्मली लीनियर रिग्रेशन वाली चीज इसको हैंडल नहीं कर सकती। तो हमें अपने करा तो हमने हम अपने हाइपोथेसिस फंक्शन को अपडेट है ना, साथ में सिग्मॉइड लगा के उसकी बात हो रही है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट फंक्शन. कॉस्टिंग जो इसकी है, आपका जो ये फंक्शन है, अगर आप इसको ली स्क्वायर अपना एमएससी के थ्रू सॉल्व करोगे, हम क्या करे थे, जो हमारा एमएससी था, जो हम ली स्क्वायर एरर के थ्रू जैसे मीन वगैरह निकालते थे हमारे लीनियर रिग्रेशन में, तो उसमें इजी था, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास एक बीटा नॉट था, एक बीटा वन था. अगर ज्यादा थे भी तो लीनियर रिग्रेशन क्योंकि कर्व फिटिंग स्ट्रेट लाइन का था, तो उस केस में मेरे पास एक ही ग्लोबल मिनिमा आ रहा था और एक ही लोकल मिनिमा आ रहा था. बट इस केस में बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर वाला फंक्शन, और मतलब ये वाला भी कर रहे हैं हम, 1/1 प्लस ई टू द पावर दिस, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा राइट हैंड साइड वाला कॉस्ट फंक्शन बनेगा. ठीक है. एंड बिकॉज ये राइट हैंड साइड वाला फंक्शन बनेगा, इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि आपके पास लोकल मिनिमा बहुत सारे आ जाएंगे, एंड वी विल गेट स्टक इन लोकल मिनिमा वाइल ट्रेनिंग, अगर आप ये वाला मेथड लगाओगे कॉस्टिंग के लिए. तो कॉस्ट फंक्शन इससे बेटर बेटर बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज गेटिंग स्टक इन लोकल मिनिमा अगर आप डायरेक्टली एमएससी लगा रहे हो. तो लगाएं क्या? लगाना है ये जो भी सामने लिखा हुआ है. सो माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स लगाओगे इफ माई वाई इज इक्वल टू 1. इसको बोलते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन या फिर क्रॉस एंट्रोपी. एंड क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन का एक और नाम है, एनीवन एल्स बताओ? एक और नाम है क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन का, जिस पे आपका कैगल का स्कोर चेक होता है, दैट्स लॉग लॉस फंक्शन. सुना हुआ ये टर्म लॉग लॉस? सर्च करना लॉग लॉस फंक्शन क्या होता है. लॉग लॉस इज माय कैटेगरी दिस क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन ओनली. ठीक है. तो लॉग लॉस हो गया, क्रॉस एंट्रोपी हो गया, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया, उसमें तीनों का मतलब सेम है, हम लॉग ही लगा रहे हैं इसमें. तो कॉस्टिंग हम कैसे कर रहे हैं, हम एफ एक्स माइनस ऑफ लॉग एफ एक्स इफ वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस लॉग 1 माइनस एफ एक्स इफ माई वाई इज इक्वल टू 0. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपका जो फंक्शन निकल के आएगा, पहले मैं ये समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे जो मेरा ब्लू वाला लाइन है राइट हैंड साइड पे कर्व जो हमें दिख रहा है, इसमें ब्लू कर्व का मतलब ये है दैट माय प्रिडिक्शन, जैसे जैसे मैं कॉस्ट फंक्शन अगर मैं 1 के लिए कर रहा हूँ, वो इन्फिनिट टच करते करते मेरा बहुत हाई कॉस्टिंग बन रही है. ठीक है. और 1 माइनस वाला वो 0 वाले कैटेगरी का, तो ये ऐसे करके बन रहा है. तो इन दोनों का थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर में. सो माई कॉस्ट फंक्शन ऑफ एच थीटा एक्स कॉमा वाई, अगर आप ऐसे करके सॉल्व करोगे, इफ माई वाई इक्वल टू 1, तो आपका माइनस लॉग एच एक्स ऐसे बनेगा. लॉग फंक्शन ऐसे नीचे को जाता है, ये तो हमें मैथमेटिकली पता ही है. ठीक है. आप यहाँ से शुरू करोगे वेरी हाई वैल्यू, और नीचे आते आते जीरो की तरफ कन्वर्ज करने की कोशिश करोगे. तो ये अपना लॉग फंक्शन होता है, एंड 1 माइनस विल बी ऑपोजिट ऑफ इट. ठीक है. और उसी चीज को यहाँ पे लगाया हुआ है राइट हैंड साइड पे. सो नाउ उन दोनों को कंबाइन कर दिया. अब 1 वाला और 0 वाला दोनों को ऐड करोगे तभी अपना टोटल कॉस्ट फंक्शन निकलेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन अपना क्या बना, माइनस ऑफ वाई लॉग एफ एक्स माइनस 1 माइनस लॉग 1 minus y log 1 minus fx. And if you try to find the total error, तो obviously you have to do the summation and 1 by n. तो आपका this is the total error of all the n training examples. अब यहाँ पे okay, let's see the gradient descent optimization. So gradient descent optimization का जो calculation है वो यहाँ पे ये करा हुआ है that you are given the function f(x) equal to 1 upon 1 plus e to the power minus x, and you are doing it for this डेल्टा जेड. ठीक है. पार्शियल डेरिवेशन करना है, एंड डेल्टा जेड के लिए करोगे, मैं जेड क्या होता है इसमें, जेड क्या था विद रिस्पेक्ट टू जेड लिखे ना यहाँ पे. जेड का क्या मतलब है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी. ठीक है. तो वो जेड है यहाँ पे. एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये फंक्शन निकल के आएगा, एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड एफ एक्स with respect to some variable z is the product of these two things and derivative of power this. ठीक है. ये समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन आएगा. इजी है. नाउ इफ यू पुट दैट वैल्यू इनटू आवर कॉस्ट फंक्शन जो हमने निकाला था. ठीक है. अभी तो पीछे सिर्फ डेरिवेटिव डिस्कस करा है कि अगर ग्रेडियंट डिसेंट का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा. नाउ वी आर डूइंग इट फॉर आर लॉग लॉस, जो हमने फंक्शन बनाया था कंबाइंड वाला, उसके लिए कर रहे हैं. आपका ये फंक्शन है वाई आई इंटू लॉग एफ एक्स
वाई इज मतलब हमारा जो ओरिजिनल प्रिडिक्शन है क्लास 1, अगर क्लास 0 है तो 1 माइनस वाई आई हो जाएगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इन दी एंड आपका इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, मतलब उसी का जनरलाइज फॉर्म बन रहा है जो हम पहले कर रहे थे। पीछे हमने किया था एफ एक्स एंड 1 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे भी वही है साथ में, लेकिन पूरा सॉल्व करके बिकॉज वी हैव डन सम डेरिवेशन, यहाँ पे हमारा ये वाला फाइनल इक्वेशन बन रहा है 1 बाय एन समेशन एफ एक्स आई माइनस वाई आई इंटू एक्स आई जे। ठीक है, डेरिवेशन आपके सामने, यू कैन डू इट मैथमेटिकली अपने एंड पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो दिस इज माई एल्गोरिदम इन ए वे, अगर आपको ग्रेडिएंट डिसेंट लगाना पड़ गया तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू। इन फैक्ट दिस वी हैव ऑलरेडी डन, इसका सिमिलर पार्ट हमने लीनियर रिग्रेशन में भी इम्प्लीमेंट किया था ग्रेडिएंट डिसेंट में। ठीक है, आई विल गिव यू द कोड। अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन में आपको लैब में वी हैव डिस्कस्ड 5 एल्गोरिथम्स अकॉर्डिंग टू रैपिड्स, पर ग्रेडिएंट डिसेंट का कोड आई होप यू हैव ऑलरेडी डन इन एमएल, बट अलग से मैं आपको दे दूंगा अगर वो ये वाला एग्जैक्ट ये वाला कोड आपने स्टेप बाय स्टेप रन करके देखना है। ठीक है, फॉर बोथ द लीनियर एंड लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे वी हैव इनिशियलाइज बीटा नॉट प्लस बीटा नॉट, जितने भी अपने बीटा वाले 0 1 2 3 अप टू के सबको 0 कर दिया, एंड वी आर अपडेटिंग आवर बीटा वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ऑफ माइनस अल्फा बाय एन। अल्फा इज माई लर्निंग रेट, 1 बाय एन फॉर द एवरेज, एंड जो इक्वेशन पीछे डिराइव की थी वही यहाँ पे लिखी हुई है। Now this is the thing which we were discussing, वन वर्सेस रेस्ट। अब इसमें वन वर्सेस रेस्ट वाला यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वैसे ऑनलाइन किसी ने बता दिया था कि हम कैसे निकाल रहे हैं, आप ऑफलाइन में से बताओ कि अब यहाँ पे जो हो रखा है आप इसमें कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाओगे। तो सपोज आपने ये कर भी लिया, ठीक है, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है, दैट वी विल व्हाट वी विल डू इज वी विल फॉर एग्जांपल वी हैव टू क्लासिफाई दिस थिंग एज 1 और बाकी दोनों को हम 0 बोल देंगे। ठीक है, इनको 0 0 कर दिया और ऐसे करके हम लाइन बना के जस्ट फॉर दिस ट्रायंगल क्लास 1 के लिए हम ऐसे क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इन द एंड फाइनल आंसर कैसे आएगा, सपोज आपके पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, लेट्स से वाई y1 ऐसे कुछ करके वैल्यू आ गई, तो इसको कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, कि ये एक्स है। नहीं, ये तो आपने ट्रेनिंग करा, ये आपका ट्रेन हो गया, तीनों क्लासेस के लिए आपने वन वर्सेस रेस्ट लगा दिया कि चलो एक बार इसको 1 बोल दिया बाकियों को 0 बोल दिया, अगली बार इसको 1 बोल दिया बाकियों को 0 बोल दिया, एंड सिमिलरली थर्ड वाला क्लास, तो 3 मॉडल ट्रेन होके आ गए। तो इसका कैसे डिसीजन आएगा कि अगर आपके कोई टेस्टिंग में न्यू एक वैल्यू आई है उसको मैंने कौन सी वैल्यू देनी है, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी, सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी की। यहाँ पे हम argmax फंक्शन लगाएंगे फॉर द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्या होता है आप किसी भी क्लास का सॉल्व करोगे ना, यू आर एक्चुअली गेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी, वो 0.7 आ रही है 0.2 आ रही है, इन दी एंड तो वो प्रोबेबिलिटी है ना। तो हमने स्टार्टिंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था कि अगर आपका कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आ रहा है तो वो क्लास 1 होगा, अगर उससे ग्रेटर देन नहीं आ रहा मतलब लेस देन 0.5 है तो वो क्लास 0 होगा, यही बोला था। वो इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हमारी बाइनरी प्रॉब्लम थी 1 एंड 0 की। अब इस केस में क्योंकि प्रोबेबिलिटी तीनों की आएगी 0.7 0.2 0.6 ऐसे करके 3 प्रोबेबिलिटी आ गई, 10 आ गई, जितनी भी आ गई उसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उठा लो, आर्गमैक्स फंक्शन लगाओ, जो कि हम सॉफ्ट मैक्स में भी करते आए हैं। सॉफ्ट मैक्स तो सेम कर रहा है, आर्गमैक्स ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जितने भी हमारे डेंस लेयर में फाइनल में आते थे, हर न्यूरॉन की जो आउटपुट आती थी उसमें से बेस्ट वाला उठा के हमें दे देता था, ये वही चीज एक्चुअल में। ठीक है, तो आप वन वर्सेस रेस्ट में काइंड ऑफ सॉफ्ट मैक्स का मिलता जुलता इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो क्योंकि आप आर्ग मैक्स लगा रहे हो। अब वही चीज यहाँ पे डिस्कशन करी हुई है, फॉर ईच बाइनरी क्लासिफायर दैट वी ट्रेन वी विल नीड टू रीलेबल द डेटा सच दैट, मतलब वो 1 0 वाली गेम है यहाँ पे, ए सेट टू 1 बी एन सी आर 0 बी सेट टू 1 ए एन सी आर 0, वही सब यहाँ पे लिखा है। एंड यहाँ पे हम आर्गमैक्स इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट वैल्यू। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली ले लो, वन वर्सेस रेस्ट के थ्रू हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब उस नंबर को जनरली सिर्फ 0 1 में करना होता तो 0.5 वाला थ्रेशोल्ड काफी था, बट इस केस में बिकॉज 3 क्लासेज हैं या 4 हैं 10 हैं तो वहां पे हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लेबल देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वो 0.5 वाला
रूल, तो यहाँ पे वही सब बना हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेशन. ठीक है, इसमें ओवरफिटिंग भी तो होगी, हर प्रॉब्लम में होगी. तो इसमें ओवरफिटिंग कैसे हैंडल करें, बताओ. हाँ जी, हाउ डू वी हैंडल द ओवरफिटिंग इन दिस केस. इतना तो नहीं कर्व डालेंगे हम ट्रेनिंग के टाइम पे. तो ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, प्रैक्टिकली सोच के बताओ. अगर डेटा सेट बड़ा है क्या करोगे. रेगुलेशन लगाते आए हैं हम तक अब तक तो. कौन कौन सी है, L1 L2, L1 इज लेसो, L2 इज रिज. ठीक है, तो उससे मिलता जुलता डिस्कशन है यहाँ पे. सो ओवरफिटिंग इज ऑल्सो a प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एज वी हैव टू फिट वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री. तो उसमें जनरलाइजेशन आसानी से नहीं होगा. Problem of overfitting can be handled by regression, and that shrinks the coefficients of input variables, thereby smoothen the decision boundary to generalize well. ठीक है. रिज क्या होता है, रिज में वी आर एक्चुअली गिविंग द पेनल्टी. वो जो लैम्डा वैल्यू है दैट्स माय पेनल्टी. ठीक है, अब हमने कल ही लैब में इम्प्लीमेंट करा एंड फ्यू पीपल विल इम्प्लीमेंट ऑन थर्सडे फ्राइडे. हमने इम्प्लीमेंट किया था कल लैब में रेगुलेशन. ठीक है, उसमें मैंने बोला था कि लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रिक्टली रेगुलराइजेशन कर देगा. ठीक है, लैम्डा बाय डिफॉल्ट उसमें 1 लिखा हुआ है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में. मैंने 0.1 0.2 ऐसे करके अलग अलग करके ट्राई करके देखे थे आपके सामने पूरे कोड में, फॉर दोज हु हैव अटेंडेड. तो यहाँ पे लैम्डा इज द पेनल्टी. वो उतना ही ज्यादा बढ़ा दो अगर हमारा समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर ज्यादा आ रहा है. मतलब यहाँ पे इस केस में बीटा स्क्वायर के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए लैम्डा की वैल्यू उसके बेसिस पे चेक होगी. यही चीज अगर लेस होती तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा जे होता है रेदर देन बीटा जे स्क्वायर. ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड हो गया, सेकंड कंपोनेंट ऐड हो गया, फर्स्ट हाफ उसका सेम है जे का. एंड बेस्ड ऑन दैट फिर अब आप उसको डेरिवेशन करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव से एक तो ये आ गया आपका लैम्डा बाय एन बीटा जे. बाकी therefore beta j is updated as this. अब यहाँ पे because we have that algorithm, अगर हमने gradient descent वाला करना है तो अपना algorithm सेम ही होगा. बीटा j को अगर अपडेट करना है it will be updated by subtracting this alpha into 1 by n वाला part, but with this lambda वाला in addition. ठीक है, इस केस में so this is same as ridge regression for the linear regression, but the hypothesis is through the sigmoid. तो आपका ये सिग्मॉइड है तो द फैक्टर दिस इज लेस देन 1 सो द कोफिशिएंट्स विल बी श्रिंक. ठीक है, रिज का ये थ्योरी है. एंड लेसो इसमें नहीं डिस्कशन करा हुआ. मे बी लेसो इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर लॉजिस्टिक, मैं एक बार चेक कर लूंगा. ठीक है, अगर लेसो हुआ तो वी विल ट्राई. आई थिंक लेसो इज नॉट यूजेबल इन दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसका रीजन हम ढूंढेंगे. ठीक है, आप भी अपने एंड पे ढूंढना एंड आई विल ऑल्सो लुक इनटू इट कि इसमें हमने लेसो क्यों नहीं लगाया लॉजिस्टिक में. So I will quickly cover the classification evaluation matrix also. जितने भी classification के होते हैं 5-7 हैं, discuss कर लेते हैं so that we can be done with this classification part, and then tomorrow's lecture will be on the trees, decision tree के तीनों variation and maybe random forest also. I will try to cover all of them quickly because अपने पास syllabus बहुत ज़्यादा है. So let's do discussion on this evaluation matrix. कौन कौन से जानते हो आप, बहुत सारे हैं. कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी, बहुत आसान है ये तो. और ROC AUC वैल्यू. ठीक है, प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर, F बीटा स्कोर, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के 2-3 वेरिएशन होते हैं वो. ठीक है, उसके अलावा आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कुछ जने बोलते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक, बट टेक्निकली इट इज नॉट ए वैल्यूएशन मैट्रिक. इट इज जस्ट द वे, इट इज जस्ट द अप्रोच टू रीच टू द वैल्यूएशन मैट्रिक्स. आप वो TP TF वो सब निकालते हो. ठीक है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वो सब निकाल रहे हो आप. वो आपकी हेल्प करता है सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने में, बट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज नॉट ए इवैल्यूएशन मैट्रिक इन इटसेल्फ. लेकिन बहुत सारे बुक्स में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को लिखा हुआ है तो हम भी बोल देंगे चलो ठीक है यार तू भी है. बट टेक्निकली अगर आप थोड़ा हाई लेवल बुक्स पढ़ोगे तो उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कुछ जने नहीं बोलते कि ये इवैल्यूएशन मैट्रिक नहीं है. इट इज जस्ट ए टूल टू गेट अस टू द प्रिसीजन रिकॉल एंड ऑल द वैल्यूज. ठीक है, डिस्कशन करते हैं. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स.
कंफर्म मैट्रिक्स एक्यूरेसी में क्लासिफिकेशन रेट, प्रिसीजन, रिकॉल। रिकॉल के 3-4 नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एफ बीटा स्कोर, स्पेसिफिसिटी, आरओसी कर्व, ओके। So confirmed matrix is a table which is used to describe the performance of classification model. हाँ जी, मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा डिस्कशन पहले से कर लेते हैं, आगे जाके तो थोड़ा बहुत वो एग्जांपल आएगा अभी। When do we try to minimize false negative? कोई यूज केस बताओ, फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करना है, नहीं आना चाहिए फॉल्स नेगेटिव। कोई भी एक एग्जांपल बताओ रियल वर्ल्ड का। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है बाय डेफिनेशन? कि आपने उसको जीरो क्लासिफाई कर दिया पर वो जीरो नहीं होना चाहिए था। कैंसर हो गया, कोई भी मेडिकल इशू है, कोई भी दिक्कत है, इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट माइट बी नॉट। अगर आपको जैसे छोटी मोटी बीमारी भी है जिसके साथ बंदा रह सकता है, अगर वो गलत आ जाए रिपोर्ट में तब भी तो दिक्कत तो है ही है ना। सपोज मैंने ब्लड टेस्ट करवाया अपना, ठीक है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा लिया, उसमें वो वैल्यूज ही गलत आ गई। सपोज हीमोग्लोबिन मेरा कम आ गया और मैंने उसके हिसाब से अपनी डाइट चेंज कर दी, वो पहले से ही ज्यादा था, ठीक है। कोई भी कैल्शियम का गलत कर लो, कैल्शियम गलत आ जाए तब भी दिक्कत है, तुम्हारा डॉक्टर ने तुम्हें गोलियां लगा देनी है वो वाली, ठीक है। तो किसी भी मेडिकल फील्ड में ट्रू फॉल्स नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये हमारा गोल है। फॉल्स पॉजिटिव कब नहीं आना चाहिए, इसका कोई एग्जांपल दो। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? स्पैम ईमेल, के आपकी कोई जरूरी ईमेल आनी थी, आपने उसको स्पैम में डाल दिया लेकिन गलत किया, तो वो फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव तो इसके ऊपर क्या ही चर्चा करना, वो तो आना ही चाहिए, वो तो जितना मैक्सिमम हो जाए वो अच्छा। सो दिस इज द टेबल। फॉल्स पॉजिटिव को आप टाइप 1 एरर भी बोलते हो, फॉल्स नेगेटिव को आप टाइप 2 एरर भी बोलते हो, ठीक है। दिस इज द अनदर नेम। अदरवाइज कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि अगर आपने किसी को धक्के से नेगेटिव बोल दिया और वो गलत है, ठीक है, तो वो आपका टाइप 2 एरर है। तो ये बेसिक चीजें हैं। लेट्स कंटिन्यू। सो विच एरर इज मोर इम्पोर्टेंट? देखते हैं। सो दो वी वांट टू मिनिमाइज बोथ ऑफ देम, बट समटाइम्स दोनों को इकट्ठा मिनिमाइज करना दिक्कत देता है, तो आप एक को प्रायोरिटी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द यूज केस। अगेन आई वुड अगेन गिव यू द एग्जांपल, अगर मेडिकल फील्ड में हो तो आप फॉल्स नेगेटिव के ऊपर फोकस करोगे, और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? टाइप 2, राइट। फॉल्स नेगेटिव को आप ज्यादा वेटेज दोगे, तो फॉल्स पॉजिटिव अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि अगर मेडिकल में ना अगर किसी को आपने बोल दिया कि हाँ तेरे को कैंसर है और नहीं था, तो बंदे को 1 या 2 टेस्ट एक्स्ट्रा करवा के पता चल जाएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने किसी को आज बोल दिया कि तेरे को कैंसर नहीं है और उसको था, और 6 महीने बाद दोबारा दिक्कत आई, वो अगला आया, तो टाइप 1 से टाइप 3 तक पहुंच जाएगा, मतलब जो लेवल ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि बोल दो कि यार हाँ है तो बंदा 1-2 टेस्ट और करवा के क्लियर हो जाएगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। एंड द थिंग इज दैट ओनली कि आप डिपेंडिंग ऑन द यूज केस आप डिसीजन लोगे कि आपको किसको वेटेज ज़्यादा देनी है। एक्यूरेसी तो हमें पता ही है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो दैट्स एक्यूरेसी। एंड व्हाई इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक व्हेन द डेटा सेट इज इम्बैलेंस्ड? बताओ रीजन। बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आएगा या नहीं, ठीक है। अगर आपने 1000 दिन कितने होते हैं? 3 साल होते हैं, 3 साल में से 3 साल -1 डे के लिए आपने ठीक बता दिया प्रिडिक्शन, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। 999 डेज की आपने बिल्कुल सही बता दिया, 99.9% एक्यूरेसी है। पर जिस दिन भूचाल आना है वो आप बता नहीं पाए, मशीन फेल हो गई जिसके लिए बनाई गई थी, है ना। तो एक्यूरेसी हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैंसर में भी सेम है, हर बंदे को तो कैंसर नहीं है, हर बंदे को तो कोविड नहीं है, ठीक है। चाहे कोविड है चाहे कैंसर है, वो 2 या 3% लोगों को, मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कैंसर का, तो हर 100 में से 2 बंदे को है। वो तो नहीं होता, 10-10 हजार में से 2-4 को होता है ना। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक्यूरेसी बहुत हाई आ जाएगी उस केस में, अगर आप मॉडल ट्रेन कर दोगे और मॉडल आंख बंद करके यस 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 बोलता जाए कि इसको कैंसर नहीं है, मतलब ठीक है,
नॉट कैंसर ट्रू हर बार आ गया, और जिसको था वो रह गया, तो एक्यूरेसी तो गलत हो गया ना यहाँ पे। तो एक्यूरेसी उस केस में हम वेटेज नहीं देंगे। तो उस केस में क्या होगा, टू टेक्निक्स होंगी। एक तो आप इम्बेलेंस डेटा सेट को हैंडल करोगे विद मल्टीपल टेक्निक्स। आप इमेज होगा तो ऑगमेंटेशन लगा लोगे, टेक्स्ट डेटा होगा तो आप स्मॉट एनालिसिस लगा लोगे, है ना। तो पहली बात तो आपको इम्बेलेंस को हटाना है। सेकंड थिंग, मेडिकल में स्पेशली F1 स्कोर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि आप एक्यूरेसी पे कैंसर को मत डिटेक्ट करो, F1 स्कोर के बेसिस पे देखो कि F1 स्कोर आपका कितना हाई आ रहा है। एक्यूरेसी आ गई आपकी 99, F1 स्कोर आपका 20%, 0.2, तो गलत हो गया, ठीक है। मिस क्लासिफिकेशन, बस ऊपर TPTN की बजाय FPFN हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, कितने गलत हैं वो मिस क्लासिफिकेशन रेट है। प्रिसीजन क्या होता है, करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, टोटल पॉजिटिव कितने थे उसमें से आपने कितने ठीक बताए हैं, दैट्स प्रिसीजन। एंड रिकॉल है ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल करेक्ट प्रेडिक्शन, टोटल करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन। तो अगर आपने फॉल्स नेगेटिव बोला वो भी तो पॉजिटिव ही था, अगर किसी को नेगेटिव बोला और वो फॉल्स था तो वो ट्रू ट्रू ही हुआ ना बैक एंड पे। तो TP upon FN, TP plus FN will be the denominator of recall, and TP plus FP will be the denominator of precision. तो इसका थोड़ा थोड़ा फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के साथ लिंक है, ठीक है। अगर आपने फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना है तो आप प्रिसीजन के ऊपर फोकस करोगे, अगर आपने फॉल्स नेगेटिव को डिक्रीज करना है तो आप रिकॉल के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। F बीटा स्कोर इज द फैमिली ऑफ F स्कोर, ठीक है। हम F1 स्कोर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बट F बीटा इज द फैमिली जो इसका मेन फंक्शन है। तो फॉर्मूला इज लाइक दिस, 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू पी आर अपॉन बीटा स्क्वायर P प्लस आर। अब इस केस में डिस्कशन ये हो रखा है दैट इफ यू वांट टू गिव हायर रिकॉल वेटेज ओवर प्रिसीजन, रिकॉल को ज़्यादा वेटेज देनी है, मतलब आप FN के ऊपर ज़्यादा वेटेज डालना चाह रहे हो, देन टेक बीटा ग्रेटर देन 1, बट अदरवाइज बीटा विल बी लेस देन 1। अगर आप प्रिसीजन को ज़्यादा वेटेज देना चाह रहे हो तो बीटा को छोटा कर दो, 0.5 कर दो, 0.7 कर दो, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको याद रखना, ठीक है। F1 स्कोर सिंपल है, बीटा की वैल्यू 1 कर दो, F1 स्कोर का फॉर्मूला बन जाएगा, उसी में से ड्राइव हुआ है, एंड इट इज द अनवेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड R। अब इसमें ना वेट्स का भी होता है, अगर आपने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करी है कभी कोडिंग में, तो वहां पे क्या क्या होता है बताओगे जरा। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इमेजिन करो कि आपने मॉडल रन करा, ट्रेन करा, एंड में आप इवेल्युएट कर रहे हो, एंड यू आर प्रिंटिंग द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। उसमें क्या क्या कॉलम नेम्स होते हैं, क्या क्या इधर वाली नेम्स होती हैं, बताना जरा सारे सीक्वेंस में। व्हाट आर द कॉलम नेम्स, व्हाट आर द रो नेम्स, बताओ। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, और एक और होता है फोर्थ नंबर पे, क्या होता है वो, उसका मतलब तो काउंट होता है कि वो कितना काउंट है, उसका एक कीवर्ड होता है, मैं उसका नाम भूल गया, ठीक है। बट उसका मतलब होता है कि वो कितने केसेस हैं, जैसे 0 1 2 क्लासेज हैं तो उसके 0 वाले के 30 हैं, 1 वाले के 20 हैं, तो वो सारा नंबर आ जाता है। उसका मैं हेडिंग भूल गया क्या होता है, लेकिन उसमें दैट इज प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड वो वाला मैट्रिक। एंड इधर वाले केस में क्या होता है हमारा, एक्यूरेसी एक सबसे नीचे होता है वेटेड वाला, एक और होता है साथ में, तो वेटेड की बात हो रही है, ठीक है। कि आपका जो वेटेड है, मैक्रो पता नहीं माइक्रो एक वो होता है, एक वेटेड होता है। तो वेटेड वाले का मतलब होता है कि आपका जितना काउंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो और ऑन एन एवरेज एंड में कितना आ रहा है। तो वेटेड वाला हम हमेशा रिसर्च पेपर में लिखते हैं या बताते हैं किसी को भी, क्योंकि आपका अगर ठीक आया है और आप उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हो अपनी क्लासेस के हिसाब से, देन दैट इज द बेस्ट आंसर ऑफ प्रिसीजन और रिकॉल। तो वेटेड वाला ही हमेशा कोड करा जाता है। वही चीज आ गई यहाँ पे, मैक्रो एंड वेटेड प्रिसीजन। द प्रिसीजन कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इज कॉल्ड माइक्रो प्रिसीजन। जो बाय डिफॉल्ट आ रही है ना वो माइक्रो है। बाय डिफॉल्ट आप प्रिसीजन का पीछे हमने फॉर्मूला क्या देखा था, TP अपॉन TP प्लस FP, रिकॉल का था FN नीचे, उसका FP था। तो अगर आप TP अपॉन TP प्लस FP कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रिसीजन है, जो नॉर्मल प्रिसीजन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिसीजन
positive, TP upon TP plus FP, precision negative, TN upon TN plus FN. मैक्रो प्रिसीजन क्या होगा, आप ऐड कर रहे हो दोनों को डिवाइड बाय 2, और वेटेड क्या होगा, आप उनके काउंट्स भी ले रहे हो N1 N2, तो वेटेड वाला हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। वेयर N1 इज द नंबर ऑफ सपोर्ट, हाँ वो सपोर्ट था, दैट फोर्थ कॉलम वाज द सपोर्ट, वहाँ पे सपोर्ट लिखा होता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है कि आपका कितने केसेस हैं उस क्लास के, ठीक है। एंड सेम फॉर रिकॉल, अगर आप रिकॉल पॉजिटिव देख रहे हो तो TP अपॉन TP प्लस FN, रिकॉल नेगेटिव देख रहे हो तो TN अपॉन TN प्लस FP, एंड मैक्रो वेटेड रिकॉल ये सब आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सेम फॉर द F1 स्कोर, ठीक है, 2PR अपॉन P प्लस R, डिपेंडिंग ऑन आप पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हो नेगेटिव के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। एंड लेट्स लुक एट दिस दिस एग्जांपल, वैसे टाइम हो चुका है, सो यू कैन क्लिक दिस फोटोग्राफ एंड ऑनलाइन पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको सॉल्व करके लेके आना, ठीक है, अगली क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।